Okay. So this is it okay now? There are the few points which I have written. In 1986, when we started as a beginner in the IT field, first virus came into existence was Happy Birthday Joshi. There was some Mr. Joshi. He had a birthday and nobody wished him. He got annoyed. He wrote a small program and he flashed on all the computers of the colleagues, say Happy Birthday Joshi. And if you typed Happy Birthday Joshi, it said thank and disappeared. But if you didn't type Happy Birthday Joshi, it deleted all the all the data from your hard disk. That was the first virus in India, the computer industry. That was for the first time people heard the something like this. And why I am sharing this, it was again human being. Anything related to data security or cyber security, the crucial part is human beings. Now let's come to the second part. When the data loss happened for the first time, I was working with a company called Indian Compressors Limited. One of the LAN had just come in. LAN had just come in, and one of the new guy, Raju Kumar, working with us, by mistake deleted the some files. That time we used to work either on the COBOL or BASIC or the Fox Base. He deleted some data, and he had to personally work 72 hours non-stop to key in that data. And that was a big lesson. And it gave us the insight that we must have the proper backups, daily backup, weekly backup, monthly backup. Those kind of things happened. And after some time, Ghulam Nabi Azad contacted me, and they wanted entire Congress members' data, Pan India data, to be punched in. I helped them to get that data done. But after the data was keyed in, one fine day, I got a frightening call from Ghulam Nabi Azad. Somebody has stolen the printout of that, all the members. The entire database of the members was stolen. So that was the second incident where printouts were taken away by people, right? And after that, when I was working with Trident around in the year 99, some of our data went into the market, and we came to know about it. After detailed investigation, we realized that the resident engineer, hardware engineer on site, that was the culprit. But we had to put strict discipline for the checking of all the people going and coming in. That was a big hassle, because a huge number of people coming in and going from the office and factory. So our MD Rajendra Gupta ji said, even I will not cross the gate until I have been frisked or I have been checked properly. And computers आना जाना तो खैर मतलब ही नहीं था, पेन ड्राइव और वो सारी चीजें, CD कुछ भी नहीं, मतलब that was the with the top it started happening things like that. But before that, there was a situation when I was working with Lalit Modi ESPN channel as a CIO for this. For the first time in the history of our country, we got the data of cable operators from Pan India, and how many connections they have, their information, who is the contact person, number one, number two, entire database. So then we had to, Lalit Modi said that we have to protect it. Nobody should be able to copy it. Nobody should be able to steal it. But there was nothing in India at that time. I traveled to US for quite a large number of time. And then finally we could get some, finally we could get some software which was not specifically for the Fox Base database, but we could customize it for our use, and we protected our data in an encrypted form. We stored the data in encrypted form in the same database. And that company, Accent from Washington, DC, Virginia, they couldn't believe we had done it without their help, because we never had a source code of that software or the technology which they were having. But without having the source code, we did that. And to understand that thing, those people came to India to see how we have done it, right? And then came the Walmart, our first customer with Trident. We had a very
big customer. Walmart still they are a big customer, and we were awarded the best supplier of the year award for the simple reason we had connected. At that point in time, we had installed VSATs, huge investment by the company, and we had connected through internet because 98 only internet had come in the country. In 99, we had a not very good internet, but somehow we managed, not just managed, we were able to update daily data. So at that point in time, Walmart asked for the security. So we didn't have anything in India by that time. So they shared their security protocols and their software to protect the data, right? So that was the experience when we realized that data is so important, data is so crucial, because Walmart gave us a huge presentation on that. Now let's come back to the normal life. One of my friend who is a big shot in Apple nowadays, but that time he used to work for Wipro. His email ID was hacked, and some objectionable emails were sent to his wife, and it came to the situation that he had to divorce. And you won't believe, we were the first one to fire cybercrime FIR in the country, our country. हौज खास थाने में हमने पहली साइबर क्राइम की FIR लिखाई थी for that purpose. We couldn't stop the divorce, but at least we are the first one to lodge the complaint cyber crime की. और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, और साइबर फ्रॉड, बिकॉज अभी मतलब 10 साल पहले 12 साल पहले एक बड़ी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काफी बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ. छोटे मोटे तो बहुत होते रहते हैं, बहुत सारे सीरियल भी बन गए, और अगर आप साउथ की मूवीज भी देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में दिखा रहे हैं आजकल, क्योंकि जब से इंटरनेट आ गया ना, तब से चीजें बहुत डिफरेंट हो गई हैं. जैसे जैसे चीजें चेंज होती जा रही हैं, उतना ही लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है. और अभी कोरोना काल में तो बहुत ज्यादा घर में बैठे बैठे लोग नए नए फ्रॉड्स, नई नई चीजें कर रहे हैं, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से उतना सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं थी लोगों की, चाहे वो कॉर्पोरेट था, चाहे वो मल्टीनेशनल था, चाहे कोई भी था. तो इस तरीके से साइबर फ्रॉड्स काफी हो रहे थे, राइट. नेक्स्ट, पुराने जमाने में जो अवेयरनेस थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी. आज मैं अभी आज ही देख रहा था, किसी ने मेरे को दिखाया ये अपना एक जैसे किसी अपना ये होता है, RBI ने जैसे ही एक बुकलेट इशू करी है. देखिए आप, ये बुकलेट क्या क्या हो सकता है, राइट. इसकी पूरी एक 40 पेज की बुकलेट है, सॉफ्ट कॉपी है, व्हाट्सएप पे दनादन फॉरवर्ड हो रही है. क्या है कि आपको तरह तरह की चीजें, डूज एंड डोंट डूज, फिशिंग, ये वो सारा कुछ हो रहा है. लेकिन ये सारा का सारा अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, बिकॉज सबसे क्रूशियल जो चीज है वो है पर्सन. इंडिविजुअल इज क्रूशियल, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है, आपका कलीग है, आपका घर में बच्चा है. तो एनीबडी कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दिस दिस थिंग. नाउ प्री इंटरनेट चीजें थोड़ी डिफरेंट थी. जब इंटरनेट था तो सिर्फ डेटा या तो कॉपी होता था या प्रिंट आउट निकलते थे, राइट. बट पोस्ट इंटरनेट तो घर में बैठे बैठे कहीं से भी कहीं पे भी डेटा जा सकता है. तो दैट वाज दी जिसे कहते हैं ना कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब घर आप कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी चोरी कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें एक बहुत बड़ा एक जिसे कहना चाहिए कि सेटबैक है, और हमारे लिए बहुत एक चैलेंज भी है, हमेशा से चैलेंज रहेगा. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके लिए मैन पावर ट्रेन नहीं है हमारे पास, लोगों का बेंट ऑफ माइंड वैसा नहीं है. बाय डिफॉल्ट हम लोग कैजुअल अप्रोच से चलते हैं. घर में भी कुछ चीजें होती हैं, अब जैसे गाड़ी खरीद ली तो उसकी सर्विस नहीं कराएंगे और फिर गाड़ी खड़ी हो जाएगी एक दिन. हम अपनी भी मेंटेनेंस नहीं करते, अपनी भी कई बार फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर जाके डॉक्टर कहता है वेट कम करो या कुछ भी है, तो हमारे साथ भी वही सारी चीजें होती हैं. तो बेसिकली हम लोग जिस तरीके से आम जिंदगी में, वैसे ही अपनी इंटरनेट और IT, क्योंकि हमने बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक 2004 में शेल कंपनी, मैं 2001 में नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू कर लिया था. तो शेल ने करना था इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल शेल ने अपने इंडिया में अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह सब इम्प्लीमेंट करनी थी, और वो सारा का सारा काम हमारे को मिला. और आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चों ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि सब सीखना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, इट वाज नॉट एन इजी जॉब. और शेल हमारे परफॉर्मेंस से इतना खुश हुआ कि उन्होंने हमको सारे एम्प्लॉइज को 1 मंथ की सैलरी बोनस के तौर पे एडिशनल पेमेंट करी कि भाई आपके बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया. तो देखिए, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द की, इफ यू आस्क मी. बिकॉज आप कितनी भी अच्छी चीजें बना लें, कितना भी कुछ बना लें, कोई फायदा नहीं.
दूसरा जो एक चीज मेरे को बड़ा याद आ रहा है, प्रमोद महाजन के साथ हमें बहुत काम करने का मौका मिला। हमारे टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, सारा कुछ जो है काफी कुछ उनकी वजह से आगे बढ़ा काफी। मुझे याद है वेरी साइन के सीईओ थे सरदार जी, मैं नाम बोल रहा हूँ, हम मैं साथ में ही मिला था उनको मिनिस्ट्री में, और they had agreed to have a digital sign in 2004 itself, 2003-2004 की बात है। और उन्होंने कहा था कि डिजिटल साइन कंपलसरी कर देंगे। हमें बहुत लेट जाके, मतलब उनके जाने के बाद मेरे ख्याल 10 साल तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद फिर अब जाके डिजिटल सिग्नेचर सबको मिलने शुरू हुए, लोगों को कंपलसरी हुए, अब धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। लेकिन he had a thought of this in 2003 itself and he had initiated the discussion with VeriSign and everything। तो मेरे को क्या लगता है कि हमारे यहाँ सारी लोगों को जिस तरीके की फोर साइटेडनेस होनी चाहिए इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। गवर्नमेंट के बाद फिर आती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल, फिर आती है छोटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है। मुझे याद है 2003-4 की बात है, ईस्टमैन इंडस्ट्री लुधियाना में एक कंपनी है, हम उनके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए बात कहते हैं, हमें क्या सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। मैंने कहा सर आपको हम दिखाते हैं कुछ। उनके कंप्यूटर, उनके ऑफिस में बैठ के अपने लैपटॉप से मैंने उनका फाइनेंस का डेटा दिखा दिया सारा, हैक करके। तो वो हैरान हो गए, मतलब एमडी सीट से खड़े हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जी आपने इंटरनेट ऐसा ले रखा है केबल ऑपरेटर से सस्ता वाला कि वो उसमें कोई फायरवॉल कुछ है ही नहीं, जो मर्जी आगे घुस जाए आपका सारा डेटा लेके चला जाए। तो बेसिकली क्या है कि पीपल शुरू में बिल्कुल ही अवेयर नहीं थे इन चीजों के बारे में कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज तो फिर भी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में काफी होता है, लेकिन फिर भी लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स हैं, भी इंसान है, गलती करेगा ही करेगा, राइट। अब आप अगर ट्रेन मैन पावर की बात करें, वो सबसे बड़ी एक शॉर्टेज है आज की डेट में। तो 2013 में अगर 1 मिलियन जॉब्स थी, तो 2021 में 3.5 मिलियन जॉब्स हो चुकी हैं इसकी साइबर सिक्योरिटी के एरिया में। और ये मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 350% ग्रोथ हुई। अब इसमें से कितने लोग जॉब ले पाए नहीं ले पाए वो बात की बात है, बट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा यूजर बढ़ रहा है, क्योंकि अब देखिए स्क्रीन बढ़ गई हैं, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, आपका आईपैड है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, और जितनी ज्यादा स्क्रीन है उतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ आपको सिक्योरिटी चाहिए। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो पब्लिक इक्विपमेंट्स यूज नहीं करने देती, पब्लिक स्क्रीन यूज नहीं करने देती, पब्लिक इंटरनेट यूज नहीं करने देती, तो उन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी चीजें हैं, राइट। और अब अगर हम बात करें कि साइबर सिक्योरिटी की स्टेटिक्स के बारे में, अब ये 10-11% से ग्लोबली ग्रो कर रही है मार्केट, और कोरोना की वजह से मेरे को लगता है ये और भी ज्यादा स्पीड से बढ़ जाएगी, क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ कि पीपल हैव स्टार्टेड वर्क फ्रॉम होम। अभी बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी टीसीएस वगैरह कंपनियां घर से ही काम करा रही हैं, अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और वर्क घर पे आप कितना भी कर ले, वो उस तरीके की सिक्योरिटी फायरवॉल सारी आप घर पे नहीं लगा सकते। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी वजह से काफी कुछ बढ़ गया। अब हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, और उसके बाद जो है कहते हैं किसी भी एक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच को डिस्कवर करने में 280 दिन लग जाते हैं। अब 280 दिन बहुत होते हैं सर, तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी, जब तक आप बचे हुए, लेकिन पता नहीं कब कौन आपको कहां से सैबोटेज करेगा, आपका डेटा ले उड़ेगा, किसी को पता नहीं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस 95% आर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स। अगेन मैंने जो बात बोली, ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो इसलिए हमारे यहाँ जो भी आपकी टीम है, यूजर्स हैं, उनको सही तरीके से, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। ओटिस एक कंपनी है जिसके जो मेरे क्लाइंट थे, और उनके यहाँ पे ऑडिट हुआ, उनके सिंगापुर से आई हुई थी टीम, और उनको वहां पे एनडीए कहते सारे बंदों के साथ एनडीए साइन क्यों नहीं हुआ आपका। मेरी एक टीम वहां पे बैठती थी काफी बड़ी, तो उनका मुझे फोन आया सीआईओ का, मैंने कहा जी हमारा हर बंदे के साथ एनडीए है, हमारे सारे एम्प्लॉइज के साथ एनडीए साइंड है, कोई भी डेटा ब्रीच इधर उधर होगा तो दे विल बी पेनलाइज्ड हेवीली, दे विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ दोज एनडीएस विद द टीम। मतलब ओटिस में डिजास्टर होने से बच गया, क्योंकि ये एक बड़ी बेस, हम नहीं करते ये काम, हम अपने एम्प्लॉयज के साथ एग्रीमेंट नहीं करते, एनडीए साइन नहीं करते कि कोई भी डेटा हम आपसे शेयर कर रहे हैं तो आप उसको इधर उधर, कई बार आदमी ना चाहते हुए अनजाने में ही कैजुअली कुछ बता देता है, तो वो सारी चीजें कवर अप हो सकती हैं इन चीजों के साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब मेरा मानना तो ये है कि अगर आपके बंदे सही हैं तो आपको सब कुछ सही है, राइट। तो ये इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा ऑफन जो टारगेट होता है वो गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सारी रिसर्चेस यही कह रही है, ह्यूमन कॉज मोस्ट सिक्योरिटी ब्रीचेस, टोटल साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग
123 बिलियन थी 2020 में, राइट? और ये डबल हुई है, मतलब 2020 में, इससे मतलब डेटा ब्रीचेस डबल्ड, एक साल के अंदर डबल हो गई, राइट? अब साइबर क्राइम माइट अकाउंट फॉर 5.2 ट्रिलियन इन लॉसेस। आने वाले समय में $5 ट्रिलियन के लॉसेस एसेंचर का सोर्स है, ये एसेंचर कह रहा है, राइट? It is estimated that on average 497 data records were lost per second in 2019, right? Security made up 50% of cyber security budgets, गार्टनर कह रहा है। अब देखिए इसकी साइबर क्राइम की जो ट्रेंड्स हैं, 28% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्टेड ransomware attack during the prime COVID lockdown. और आप देखिए Q3 में 2020 saw significant increase in email threats, malicious URLs, malware, कोविड पे बहुत ज्यादा हुआ, malware वगैरह सारा, DDoS, social engineering attacks are expected. मतलब these are variety of breaches you can say, attacks you can say, right? साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स जो है वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा जॉब्स बढ़ रही हैं जिसका हिसाब ही नहीं। इनडायरेक्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। साइबर क्राइम रेट्स वेंट अप टू बाय 600% कोविड के टाइम पे, बताइए, साइबर क्राइम रेट्स वेंट अप बाय 600%। तो बेसिकली खाली दिमाग शैतान का घर कहते नहीं है, एक तो सबूत है उस बात का कि बंदा घर में बैठे बैठे भी काम कर रहा है। तो बेसिकली ये सारी की सारी एक जर्नी है अपने आप में, और ये हम कभी भी नहीं कह सकते हम फुल्ली सिक्योर है, कभी भी नहीं कह सकते। दैट्स व्हाट माय सबमिशन इज। कोई भी ये नहीं कहता कि हम फुल्ली सिक्योर हैं, फुल्ली सबमिशन है। ऐसा जितनी मर्जी आप बुलेट प्रूफ पहन लो, छाती माथे पे गोली लगेगी, आप मर जाओगे। जितना मर्जी आप कंपेयर कर लें, आप कितने ताले लगाएंगे, एट द एंड ऑफ द कोई ना कोई ताला आपका एम्प्लॉय कोई खोला छोड़ गया, आपका काम हो गया, राइट? Women represented 25% of global security workforce. According to cyber security venture, this is increased from 20% to 2019. मतलब 2 साल में over half, 50% of cyber attacks will target medium and small size. देखिए पहले था कि बड़े इंटरप्राइजेस होते थे, बट अभी क्या है, स्मॉल और मीडियम, एमएसएमई भी अटैक्स होने शुरू हो गए पिछले 2-3 साल से। तो स्मॉल एंड मीडियम सबसे ज्यादा अटैक इनके ऊपर होने वाले हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग मार्केट। तो इफ एनी वन ऑफ अस इज टारगेटिंग दोज मार्केट, इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, राइट? अब देखिए टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, मेलवेयर फंक्शन, ये तो सभी जानते हैं आप लोग, मेलवेयर कहाँ से क्या, टॉर्जन, वॉर्म, हार्मफुल वायरसेस, सारा। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर हैकर्स जो जो इनकी पूरी स्ट्रेटजी है। लेकिन जो सबसे बड़ा है, इनसाइडर थ्रेट्स। 60% ऑफ साइबर अटैक्स कम फ्रॉम इनसाइडर थ्रेट्स। आपका कोई इंटरनल बंदा कुछ भी करके छोड़ सकता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, काफी सारा फाइल्स आपको पब्लिक को एड्रेस, अपने एम्प्लॉइज को देखने के लिए खोलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और उसकी वजह से काफी कुछ चीजें प्रॉब्लम रहती है कि लौट फिर के बाद वापस हमारे डिसिप्लिन पे आती है। हमारे पासवर्ड कितनी बार बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, हमें अपनी लॉक करना है, स्क्रीन लॉक करना है, नहीं करना है। तो ये बेसिकली सारी चीजें अगेन आगे लौट फिर के मैन पावर पे ही आ जाती हैं। अब वर्ल्ड वाइड एस्टिमेटेड 2025 तक 10.5 ट्रिलियन एनुअली मतलब इस पे डैमेजेस हो जाएंगे साइबर क्राइम की वजह से, which is huge sum, which is huge sum. The biggest data breach of all time involved 10.88 billion in accounts was a CAM4 data breach, 2020 में हुआ था, ठीक है? ऐसे ही और भी हर एक का, मतलब जो भी ब्रीच होता है वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। किसी का भी ब्रीच होता है तो वो मिलियंस और बिलियंस में ही रहता है, ठीक है? नहीं, यूएस हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एवरेज कॉस्ट फॉर डाटा ब्रीच, 8.64 मिलियन, मतलब एवरेज ब्रीच कॉस्ट। आप अंदाजा लगाइए। आफ्टर कैम4 सिक्योरिटी ब्रीच, मतलब जो उसके अलावा थे, बाकी याहू था, आधार का था, फर्स्ट अमेरिकन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का हुआ है, वेरिफिकेशन का हुआ, फेसबुक का हुआ, याहू में भी हुआ, मैरियट में हुआ। तो बेसिकली माई स्पेस, काफी सारी चीजें जिस जहाँ पे हो रहा है, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी जिनका कई मिलियन बिलियन डॉलर्स में वो स्पेंड कर रहे हैं अपने डाटा सेविंग के, डाटा सिक्योरिटी के लिए, बट स्टिल दे आर नॉट सेफ, दे आर नॉट सिक्योर। तो इसी तरीके अब क्रिप्टो आ गई है, क्रिप्टो में भी पता नहीं क्या क्या हो सकता है, बिकॉज वो तो सारा ऑनलाइन मनी है, सारा का सारा ऑनलाइन मनी है। तो बेसिकली एवरेज रैंसम पेमेंट ऑफ दोज कंपनीज, मतलब जो इन्फेक्टेड विद रैंसमवेयर था, बताइए, मतलब 2,33,817, मतलब कमाल है।
हर एक का अगर आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन 64% डोंट नो व्हाट टू डू इफ डेटा ब्रीच अकर्स। देखिए ये मतलब क्या करना है ये इनको पता नहीं है। Unfortunately, it takes 280 days to find the contained data breach. Companies leave large number of sensitive files accessible to employees. Yes, करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारा डेटा अगर यूज ही नहीं करेंगे, सारा लॉक में हर वक्त रहेगा, तो आप यूज नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या डेटा का। ठीक है जी। Vulnerability are frequent in email. For example, 93% of all malware arrives from computers via email. COVID and data security, with less supervision, malicious employees, malicious insider threats. तो बेसिकली अगर आप देखें तो सब ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कि आपने कोई गलत ईमेल आई उस पर क्लिक कर दिया, या आपने कोई और लिंक पे क्लिक कर दिया, बस हो गया काम, आपको पता भी नहीं चला और आपका डेटा भी चला गया, सब कुछ चला गया। अब इंडस्ट्री एंड बिजनेस टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा अटैक होता है। अब जैसे अब देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मैं एक चीज बताता हूँ। लोग अगर क्रेडिट कार्ड से अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है और डेबिट कार्ड से हुआ है, डेबिट कार्ड वाला तो हमारे अकाउंट से निकल गया पैसा, बट अगर क्रेडिट कार्ड से अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो विद इन 3 days इफ वी इन्फॉर्म द बैंक तो हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ। अगर हमने 3 दिन के बाद किया, 6 दिन के अंदर भी कर दिया, तो भी अगर हमारी लिमिट 5 लाख है तो 10,000 रुपए, और अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 25,000 रुपए। दैट इज द मैक्सिमम डैमेज यू विल हैव, राइट। तो बेसिकली इन चीजों के लिए ये भी अब गवर्नमेंट ने जब सख्ती की है तो ये सारी चीजें बनी है। नहीं तो आप शुरू शुरू में जब क्रेडिट कार्ड आए थे तो गड़बड़ी हो जाती थी, कार्ड चोरी हो गया, किसी ने यूज कर लिया तो कुछ नहीं होता था। बट नाउ डेज एटलीस्ट यू हैव सम सेफ गार्ड, यू हैव सम प्रोटेक्शन वेयर यू इफ यू कंप्लेन, तो एटलीस्ट वो चीजें आपको ठीक से टेक केयर हो जाती हैं। अगर आपका बैंक नहीं सुन रहा तो आप आरबीआई के पास भी कंप्लेन करते हैं, क्योंकि वो सारे आजकल पब्लिसाइज कर रहे हैं, एड्स दे रहे हैं, चाहे प्रेस में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर तरफ, राइट। तो अब जो साइबर अटैक्स हुए हैं जो बहुत ज्यादा, फिशिंग के 38%, इंक्लूजन 32%, और आपके स्टोलन लॉस डिवाइसेस ऑफ रिकॉर्ड 8%, सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन 5%। मतलब ये देखिए सारी की सारी चीजें, ये डेटा सिर्फ हमें बता रहा है कि क्या क्या होता है, लेकिन अगली बार परसेंटेज क्या होगी किसी को पता नहीं। मतलब दिस इज जस्ट इंडिकेटिव, वी कांट जस्ट रिलाई ऑन दिस कि आगे ऐसा नहीं होगा, नहीं, सेम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे गलत भी हो सकता है। ठीक है जी। अब चूंकि वेब एप्लीकेशन बनती हैं, ऑनलाइन लोगों ने काम करना ही करना है, तो जब तक ये चलेगी जब तक ये सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि आप सर्वर किसके यूज कर रहे हैं, कहाँ पे सर्वर हाउस, सर्वर पार्क उनका कैसा है, और कितनी सिक्योरिटी है, कितना मर्जी कर लें। इसीलिए रोज नए वायरस आ रहे हैं, रोज नए थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उसमें इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, इट इज अ सिंगल व्हील साइकिल। द मोमेंट यू स्टॉप यू आर डाउन, यू आर गॉट, यू आर गॉन। तो बेसिकली इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। अब पास्ट में थ्रेट्स कम थी, अभी थ्रेट्स एवरी डे एंड एवरीवेयर यू विल हैव अ थ्रेट। तो इसलिए ये बड़ी एक क्रूशल चीज है, चाहे वो सॉस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी पेमेंट गेटवेज, तो खास तौर से सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, लोगों का पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है, बहुत कुछ चीजें हैं जो चलती रहती हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है कि विजन विदाउट एक्शन इज ए डे ड्रीम एंड एक्शन विदाउट विजन इज ए नाइटमेयर। तो अगर आप सही मायने में डेटा सिक्योरिटी चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो क्रूशल जो लिंक है वो है ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा, और उसको सख्ती से आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आपको शायद अच्छा लगेगा। मैं जो कहते थे ना, हर आदमी में ऊपर जाने वाली क्वालिटी होती है और नीचे जाने वाली भी। और जो रास्ता, वो मैंने तो नीचे जाने वाला रास्ता लिया था क्योंकि आपने और कोई रास्ता छोड़ा नहीं था मेरे लिए। मुझे तो कुछ नहीं आता था सर, लेकिन करते करते पता चला कि बिजनेस में कोई चालाकी, कोई स्कीम, कोई जादू नहीं है तो बस एक चीज, लोग जो आपके साथ काम करते, जो आपके कस्टमर है। और आपको तो कभी लोग दिखेंगे, आपको तो सिर्फ नंबर दिखे, किसने कितने नंबर अचीव किए, किसने कितने टारगेट्स तोड़े। और मुझे तो स्कूल से ही नंबर नहीं समझ में आते थे, मुझे हमेशा लोग ही दिखे, कौन खुश है, कौन दुखी है, कौन क्या काम अच्छा कर सकता है, किसको किस काम में मजा आता है। कमाल की बात पता है क्या सर, जब लोग खुश होते हैं ना, नंबर अपने आप बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बिजनेस नंबर नहीं, बिजनेस लोग हैं, सिर्फ लोग। So I personally feel it is all about people. अगर आपके लोग ठीक हैं
right? So you have to take everybody along. It has to be way of life. तो इसके लिए जो सबसे पहले की बात है कि फॉर्मल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जीरो ट्रस्ट मतलब जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल मतलब उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। एमडी है चाहे वो पियोन है, सबके साथ बराबर। सिक्योरिटी ब्रीच एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। और बंदों को, सारी एम्प्लॉइज को एक अवेयरनेस पूरा वार फुटिंग पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है। अगर हम उनको नहीं अवेयर करेंगे, कल को कुछ होता है तो हम जिम्मेवार, वो जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं। और डाटा की अहमियत सबको समझाने की जरूरत है, राइट। और एनडीए सबके साथ, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, एनडीए मेरा पहला क्वेश्चन होता है। हमारे यहाँ एनडीए नहीं बनता। अगर आप एनडीए नहीं साइन कराते अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो आपका डेटा चाहे जितने मर्जी आप कुछ भी लगा लो, आपका डेटा सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपका डेटा। चाहे आपका पास कितना ही डेटा हो, अगर आपके लोग आपके से खुश नहीं है, और किसी को भी देखिए, किसी को भी आपने करप्ट करना है ना, तो उसको पावर दे दीजिए। तो जिसका पावर होती है और उसके पास अगर पैसा नहीं है, तो पैसा उसको कर लेता है। आजकल इतनी ज्यादा हनी ट्रैप्स और ये और वो पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं कि आपका डेटा, गवर्नमेंट का डेटा, डिफेंस का डेटा, पता नहीं कैसे कैसे निकाल के ले जाते हैं लोग। अब वो हर चीज के प्लस माइनस है। कंप्यूटराइजेशन के फायदे बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ ये नुकसान भी है कि डेटा इजिली पीपल कैन चुरा भी सकते हैं इसको जल्दी। अब इसकी थ्रेट मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ये नहीं कि आज हो गया कल नहीं, फिर भूल के 6 महीने के लिए। वनरेबिलिटीज को पूरा मैनेज करना बहुत जरूरी है, थर्ड पार्टी रिस्क को बहुत तेजी से मैनेज करना है, और क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी कल्चर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आपके क्लाइंट है, चाहे आपका अपना ऑफिस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने शुरू करी थी, तो हम सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पहला बना रहे थे स्टार टीवी के लिए। और हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर था कि कोई भी एम्प्लॉय सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ना लेके आएगा ना लेके जाएगा, चाहे चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, चाहे वो डेवलपर है, चाहे वो कोई भी है। एक दिन रात को, मतलब देर तक काम करते थे लड़के, एक दिन रात को 12 बजे मुझे सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया, कहते सर इनकी उसमें बैग के अंदर ये 4 सीडी निकली हैं। मैंने कहा सीडी रख लो, इनको जाने दो। अगले दिन जाके मैंने वो सीडी चेक करी, वो पूरा का पूरा स्टार टीवी का सोर्स कोड था उसके। अकेला बंदा रात में बैठा हुआ फिनिशिंग टच दे रहा था, कुछ उनका मॉडिफिकेशंस आए थे, रिक्वायरमेंट आई थी, कुछ नई रिक्वायरमेंट आई थी, उसका हमने उसी दिन हिसाब कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज नॉट अलाउड टू गेट इन द ऑफिस एंड ही वाज सेड गुड बाय। तो बेसिकली क्या है कि यू हैव टू सेट ए प्रेसिडेंट, यू हैव टू, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा सख्त आपको वो दिखाना है ताकि दूसरा उसकी हिम्मत ही ना करे। हमारे यहाँ भी चीज थोड़ी दिक्कत है। मेरे को याद है, मेरे एक मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं गल्फ में। तो एक दिन वो दिल्ली से वापस जा रहे थे, तो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। कहते कल पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने क्यों? कहते कल किसी बंदे को ना फांसी देनी है ओपनली, मुझे अपने बेटे को लेके जाना। मैंने बेटे को लेके जाना? कितना बड़ा बेटा, 8 साल का। बोले क्यों लेके जाना है? बोले वहां पे बताया जाएगा उसने क्या किया है, इसलिए उसको हैंग किया जा रहा पब्लिकली। और बेटे को अगर पता रहेगा तो दोबारा जिंदगी में वो ऐसा काम करेगा नहीं। तो ये कि कुछ चीजें हम कहीं से हमें लगता सुनने में बुरी लगती हैं, बट लेकिन वो देखिए वो कितना बड़ा एक डिटरेंट बनता है कि बंदा दूसरा वो करने से पहले 10 बार सोचेगा। दूसरा कोई भी बंदा होगा तो करने से पहले 10 बार सोचेगा कि भैया कुछ गलत काम ना करें, राइट। तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। तो अब यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं तो चीजें हम ले सकते हैं। फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अब ये मत कहिएगा किसी के सबके क्वेश्चन खत्म हो गए, सबके पीछे लाइट और आ गया। डॉक्टर लीमाय जी यस सर। सब आवाज कट रही है। question from people. Yeah, if any participants have any queries or say some suggestions regarding the topic discussed by Dr. Sethi, that is the significance of manpower in cybersecurity, they can also share their views. Anyone, please?
जी, okay. एक तो वीडियो नहीं आना किसी का, तो पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है. Who is talking? Let me Sorry. No, I think Dr. Arya ask sir is making something, जी, but जी. his question, voice Dr. is not Anil. coming properly. Okay. आर्या जी, आप व्हाट्सएप उसमें मैसेज में डाल दो, चैट में डाल दो. We are seeing. This is SP Arya, bhai. जी, ओके, ओके. Okay. Oh, let me stop the video. Just hold on. जी. Dr. Anil Sethi, this is Dr. Lima. I जी, have a जी, small query. जी, प्लीज. As per your observations, जी, how much is the integrity of people as जी, far as cyber security is concerned? जी. Means, what is the level of integrity employees have as per your observation in this particular industry? सर देखिए, इंटेग्रिटी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज का हिस्सा होती है. इंटेग्रिटी इज नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, जीरो टॉलरेंस ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज आई वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोर वैल्यूज. बट होता क्या है कि परिस्थितिवश परिस्थितिवश हमारे कोई भी एम्प्लॉय जो कोई फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, या कुछ की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे बंदे वो आइडेंटिफाई करते रहते हैं. दोस पीपल, threats are very very, people are very vulnerable. People are very vulnerable. Yes, we can protect ourselves with as many as layers of security we can put in, you know कितनी तरीके की हम लेटेस्ट से लेटेस्ट उसके अंदर लगा ले. क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, तो सीआईओ जब लेके जाता है एमडी के पास, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो बिल्कुल ही हटा, इतने पैसे क्यों करते हैं, बजट ही नहीं मिलता सर, पहली चीज. दूसरी चीज, एमएनसी में मिलता है बजट, लेकिन वो ग्लोबल होता है. उनका आपकी आपकी कंट्री के लिए कितना बजट मिलेगा उसमें से पता नहीं होता. लेकिन अगर ये इसमें सीआईओ का रोल बड़ा क्रूशल होता है. इंटेग्रिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और मैं मानता हूं कि इन जनरल हमें इंटेग्रिटी देखने को मिलती है, लेकिन लेकिन एक सेकंड लगता है किसी को इंटेग्रिटी अपनी हिलाने में. बल्कि मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एक मिनट का एक वीडियो है, अगर आप कहें तो मैं फिर दिखा देता हूँ एक वीडियो. यू विल. Sure, sure, sir. Yeah, very, very nice video, sir. तो बेसिकली अगर यू हैव टू लीड विद एग्जांपल, चाहे वो फैमिली है चाहे ऑफिस है, यू हैव टू लीड विद एग्जांपल. बेसिकली अगर हमारी पॉलिसी है कि 30 दिन में पासवर्ड बदलना है तो बदलना है, नहीं तो खड़ा हो जाएगा भाई. या और भी कोई पॉलिसी है कि हमें अपना पासवर्ड ये चेंज, अपनी स्क्रीन लॉक करके जानी है. अगर स्क्रीन हम अपने कंप्यूटर से उठ रहे हैं, स्क्रीन लॉक होनी चाहिए. हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, तो वन शुड फॉलो दैट. कभी भी किसी को शेयर नहीं करना. अगर मान लीजिए किसी ने आगे बैठ भी गए तो उसको लॉग करके दे दिया, अगर कुछ ना कुछ करना भी है तो. बट ये नहीं कि, क्योंकि मैं ना बहुत सारे अमेरिकन और वेस्टर्न जो सिक्योरिटी वाले सीरीज देखता रहता हूँ. हमारे साउथ इंडिया में बहुत सारी फिल्में बन गई. मतलब आई कैन शेयर एटलीस्ट 8-10 मूवीज लाइक दैट, जो उन्होंने एक्चुअल डिटेल्ड डाटा ब्रीच का सिस्टम सारा दिखाया उन्होंने, बिल्कुल. तो मेरे हिसाब से जितनी मर्जी आप ताले लगा लो, काम तो बंदों नहीं करना है ना. तो आपको अपने बंदे फेथफुल रखने हैं, बंदों की इंटेग्रिटी सही रखनी है. और मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं समझता, क्योंकि देखिए बच्चे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो वही करेंगे जो आपको देखेंगे करते हुए. और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो दूसरा भी फॉलो करेगा. Another follow-up question. जी सर. आप क्या सिक्योरिटी टिप्स या क्या स्मॉल पनिशमेंट सजेस्ट करेंगे so that employee will not feel offended by those particular punishments, but message will be spread? Means for say screen sharing अभी तो by default हो जाता है after say particular time, but some small mistakes if are carried out by the employees,
what could be punishments or what could be deterrent activities according to you, देखिए, which one will of not the offend employees? मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ। मैं नेगेटिविटी को हाईलाइट करने के बजाय मैं पॉजिटिविटी को हाईलाइट करना ज्यादा पसंद करता हूँ। बंदे ने क्या अच्छा काम किया वो पब्लिकली अप्रिशिएट होना चाहिए, चाहे वो क्लैप हो, चाहे उसके लिए हमने 10 लोगों को बुला के उसको सम्मानित किया। न्यू होराइजन आपने नाम सुना होगा, न्यू होराइजन करके एक कंपनी है जो ट्रेनिंग में है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग में है। तो मैं अमेरिका में काफी देर पहले की बात है, मतलब 99 की शायद बात होगी या 96 की बात होगी, मैं उनके साथ डील कर रहे थे कुछ। तो वहां पे छोटा सा एग्जांपल मैंने देखा कि कैसे वो करते थे, अप्रिशिएट करते थे एक दूसरे को। मतलब एक जार रखा हुआ था और उसमें $5 या उससे छोटे नोट रखे थे। तो मैंने जब काफी जानने लगा तो पूछा किस लिए है, तो कहते जी हम सब सेल्स वाले हैं, शाम को जिसकी सेल सबसे ज्यादा होती है सारे पैसे ले जाता है। सुबह हम लोग आके हमारे 5 का या कम से कम जो भी $1 $2 नोट होता डालते हैं और फिर वो सारे उठा के हम एक को देते, सब खड़े होकर उसकी ताली बजाते हैं। अप्रिशिएट जिसने अपना रिलीजियसली पूरा फॉलो किया, पूरे मंथ में कोई उसने गड़बड़ नहीं करी, टाइम से अपने पासवर्ड चेंज किया, कभी स्क्रीन की अनलॉक नहीं मिली, हमेशा लॉग मिली, या जो भी है अप्रिशिएट से होना चाहिए। और जो नॉन अप्रिशिएशन जिसने गलती की, ब्रीच की, उसके वो पॉइंट उसके अप्रेजल में मतलब जिसे कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड। मैंने देखा है कई कंपनियां डालती हैं, वो उसने वो ब्रीच की आईटी का बंदा है तो उसको तो खासतौर से डाला जाएगा, उसको ब्रीच के अंदर, और वो मंथली रिव्यू के अंदर वो बताया जरूर जाता है, उसका नाम जरूर लिया जाता है कि इन इन बंदों ने ब्रीच किया। तो आप सोचिए उनके लिए कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि वो इन लोगों ने ब्रीच किया सिक्योरिटी को, या आईटी सिक्योरिटी को फॉलो नहीं किया इन्होंने, चाहे वो आईटी के बंदे हैं चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे हैं। लेकिन अगर ब्रीच हुआ है कुछ भी, बट उसमें लॉस कोई नहीं हुआ, तो लॉस अगर हो गया फिर तो बंदा नौकरी भी जा सकती है। लेकिन अगर कोई लॉस मेजर नहीं हुआ बट ही और शी हैज नॉट फॉलोड द प्रोटोकॉल, देन वी कैन पुट देयर नेम्स, जैसे डिफॉल्टर लिस्ट होती है ना, वैसे जैसे डिफॉल्टर लिस्ट होती है उस तरीके से, जैसे उसमें बंदे का नाम आ गया उस लिस्ट में तो बस वो एम्बैरसिंग हो जाता है सबके लिए। जी Sir, one question. जी We in FDPP keep having a little bit of discussions off and on जी about the impact of these huge fines that has been created by GDPR regime, 2% of global turnover, 4% of global turnover and all. जी Whether it is efficient or whether it is not efficient, whether it works, whether it not works. And I think there was some discussion also whether the Indian law putting a cap of 15 crores or something. In your view, what do you think? एक खूब इतना बड़ा सा एक फाइन का लिमिट रखना, which is an eye catcher and which raises the bar. What's your view on this? ये effective है या नहीं है? सर बड़ा मैं फाइन जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं एक चीज कहता हूँ, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जो बात पैसे की भाषा समझते हैं लोग, वो पैसे की समझते हैं। जिनको पैसे से ही समझ में आता है उनके लिए वो है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो शायद मैं उतने बड़े फाइन को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है जो उसी फाइन की भाषा को ही समझती है। अब आप जीएसटी इंप्लीमेंटेशन देख लो हमारी कंट्री में, वहां पे सख्ती करी गई तभी हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। बट उसके बेनिफिट्स कितने हैं, आज मैं कितने लोगों को जानता हूं जो कितने बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से। Navi sir, I think you want to say something on this? At times नहीं, you've been an advocate of not. No, it's okay. No, I'm just. विजय शंकर जी, आप you want to say something, you want to ask something? No. Actually, cyber security and now privacy. Now we are observing a clash. For example, now from cyber security point of view, we need to identify our workforce who have propensity to commit crime. Okay, let us say, okay, for which we may design many management games and other things to identify what I sometimes call as deviant minds. Okay, and I also recommend that when it comes to promoting people to certain key positions, particularly in the security area, it is important that we do this kind of a behavioral analysis of certain key officials, because integrity is the most important thing. But now with the emphasis on privacy, now everywhere the employee will say that if you are monitoring my activity, that is infringement of privacy. So though, of course, Indian law has given a lot of exemptions for information security, whistleblowing and other things, GDPR itself
doesn't give that much of leverage to the companies, which means that employees can take advantage of the privacy norms and avoid being, say, monitored for cyber security kind of requirement. So that is one. And secondly, from what you were discussing about that incident of a person who went out with 4 CDs and you made him leave the organization. I have always Entire been source. no, I Entire understand. source I understand. What I was telling is, if we just leave the person to resign and go, does it make a good deterrent? In fact, that case has to be filed in police, and a person should have See, been. That point in that time, it was not that much prevalent, in today's world, definitely we would have taken the legal action also. In fact, that's why HIPAA actually expects that sanctions are mandatory to be there in the HR policy. Okay. In fact, I came across one similar incident in Madras where a similar CD had been taken out, and that person, nobody found out because there was no checking on the security gates. It was a BPO. Okay. But this person took the source code and next used it in another company. He left this company and went to another company and used that to improve the performance there. क्या बोलें सर, आप देखिए, आप SQL यूज कर रहे हो, MS SQL, वो कहाँ से आया, सोर्स सबको पता है, विंडोज कहाँ से आया, MS Microsoft कहाँ से आया, वो सारी कहानियां वही हैं, इंटीग्रिटी इशू है सब जगह. In that particular case, we filed a police case against the person as well as the company which had recruited him and used this software. See, probably that company was never aware that it was a stolen source code or something. The employee might have told that I have written it because he was the head of the development in the earlier company, and in the new company, he might have said, I have again developed something for this. But we preferred a complaint against the company for having, first of all, made use of this software because we were able to get some evidence out of the use of that software. So we were able to prove that my software is being used by another company X. So I'm complaining against that person and also this particular person because there was other collateral evidence. Yeah. And the other company finally went into a compromise. Of course, we were not interested in pursuing criminal thing. As far as this person is concerned, he lost his job at both the places, of course, and then he lost his marriage, which had been fixed. He lost that this thing. And then this other company, which was in Bangalore, I was talking of a Chennai company. This Bangalore company went into a compromise, agreeing that particular line of activity in which there was an overlapping business between the Chennai company and this, they gave an undertaking that they will exit that particular this thing that was medical billing or something like that. Okay. So because this company said, I am having some business, X business, and now my source code is with you, so therefore you will get a share of this. So pursuing this, I think must have happened sometime in 2002, 2003. Okay. I feel that we should not be hesitant in taking such legal action. Yes, yes. At I least, fully agree. Okay. See, of course, pursuing is very difficult because legal this thing, following it up is difficult. But filing the initial this thing when it is required. But most of the companies, what they do, they just not even sack the person. They actually take a resignation, and that person may very well go to another company. And if he is not reformed, he is likely to continue. So. This is one point I would like people to consider, to what extent we should be lenient when you definitely see a kind of say proven this thing. There are also many cases where companies actually go after a good employee because he just wants to leave. I have come across many cases where the owners of the company try to harass an outgoing employee. Okay. But between the two, both are to be taken into account. A company should not harass an outgoing employee, and at the same time, the employee also should not be allowed to take the company for an advantage. Yeah, because see, Vijay Shankar ji, you have discussed quite a lot of items, but
my summation to it is that we have to, at the time of entry, while we are interviewing the gentleman, we have to cross-check, test him on integrity, honesty, and these things. Behavioral aspects are very crucial, and that is the reason people go for the verification from the previous employers and his or her social behavior. Because क्या होता है, देखिए, आपने 10 गोल बचा लिए, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन एक गोल हो गया, वो सारी दुनिया को पता चलता है। तो सिक्योरिटी ब्रीच भी वैसा ही है, लेकिन जब तक होता है तब तक मतलब देर हो चुकी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि यू हैव टू कीप पीपल इन गुड स्पिरिट, वॉट एवर पीपल वर्किंग विद यू, एंड मेक देम अवेयर कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिसडीड और ब्रीच, दैट इज अगेन अंडरलाइन बोल्ड लेटर, एंड इट शुड बी एम्फसाइज्ड, बिकॉज जैसे कोर वैल्यूज लिखी होती है ना, वैसे हमारी ये साइबर की सिक्योरिटी और इसकी जो ब्रीचेस हैं, वो चीजें भी सब तरफ विजिबली दिखनी चाहिए, हैमर करनी चाहिए लोगों के माथे पे कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। और वो आज मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे जो साइबर लॉ की जो यूनिट है हमारी दिल्ली की और इनफैक्ट कुछ हद तक बॉम्बे की, उनसे मेरी काफी डिस्कशन रही हैं पास्ट में, और दे आर वेरी वेल इक्विप्ड नाउ, पहले नहीं थे। टुडे दे आर रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड बंदे की जमानत भी रोक सकते हैं वो। मतलब आप ये देखिए, जो पहले नहीं होता था, कभी भी बंदा तो खाली आया जमानत लेके चला जाता था, क्योंकि इसको तो बड़ा ऑफेंस नहीं मानते थे। बट अभी जो है साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, वो साइबर क्राइम जो डिवीजन सब में स्पेशल बन गए हैं, अच्छी टीम है वहां पे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वी आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। बट एट द एंड ऑफ द डे बॉइल्स डाउन टू दी पीपल, और आपको अपने बंदों को खुश रखना है, अपने बंदों को अच्छी स्पिरिट में रखना है, उनकी मोटिवेशन लेवल ठीक रखनी है, ताकि वो किसी भी लालच में आके ना करें, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली के लिए पता होना चाहिए कि कौन सी बात नहीं बतानी है। तो बेसिकली अवेयरनेस अगेन इज द की, अवेयरनेस इज द की। See, monitoring the lifestyle of the employees outside the employment situation, okay, whether they are living beyond their means, is also something which we need to look into. And whistleblowing. See, whistleblowing is very important, because before the security manager comes to know of something is wrong, the peers are likely to observe more closely. So there has to be an incentivization of whistleblowing. That is one way of I agree. Sir, your kind words. So thank you, Anil.